Hello students, here I am with the video solution of the botany part for ANTS part test 5. The syllabus of the test were photosynthesis, respiration, plant growth and development and sexual reproduction in flowering plants. Let's start with section A. Let's see the first question. 101. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the. So ये सारे क्या है? ये सारे हैं respiration के steps and we know the function of respiration is to produce energy in the form of ATP and then trap that energy. तो क्या ये एनर्जी एक स्टेप पे बनता है या मल्टीपल स्टेप पे बनता है? वी नो रेस्पिरेशन इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में हमें मिलेगा 2 SLPs लिंक रिएक्शन, उसमें क्या होता है NADH प्रोडक्शन, ग्लाइकोलाइसिस में भी एक बार NADH+ प्रोडक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेप. अगेन इन द Krebs साइकिल 1 स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और वहाँ पे होते हैं 4 स्टेप ऑक्सीडेशन के जहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन पे NADH+ बनता है और एक में बनता है FADH2 एज ए इनडायरेक्ट एनर्जी. राइट, आई थिंक ये सबको पता है. तो यहाँ पे लिखा है कि ओवरऑल गोल क्या है. सो ऑफ कोर्स वी हैव टू सी द ऑप्शन वेयर एनर्जी इज मेंशन. लेट्स सी दैट. पहले ऑप्शन पे है रिलीज ऑफ एनर्जी इन स्टेप वाइज यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. नो. Okay, formation of ATP in one large oxidation reaction. Okay, ATP formation was okay, but it is not one large oxidation step. Then breakdown of fats as the most preferred substrate, that is not the goal of the respiration. Even fat is not the preferred substrate also. We know carbohydrate is the preferred substrate. Then formation of ATP in small step wise units, right? That will go with the option number D. Already we discussed about it. So 101, the correct is option D. Pollen sac in an angiosperm correspond to which part? Pollen sac is present inside the anther. Angiosperm, dithecous anther, tetragonal shape, and it has 4 pollen sac. What are actually these pollen sacs? These are initially the microsporangium. Microsporangium एक sac like structure है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनता है. हमें पता है माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजेनस टिश्यू है एंड ये सारे स्पोरोजेनस टिश्यू इट इज मेड ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट विल अंडरगो रिडक्शन डिविजन टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ये माइक्रोस्पोर्स आगे जाके क्या बनते हैं? पोलेंस. तो माइक्रोस्पोर अगर पोलेन हो गए तो माइक्रोस्पोरेंजियम को ही बाद में क्या कहा जाएगा? पोलेन सैक. So can I say microsporangium later develop into pollen sac? So what does the pollen sac correspond to? It corresponds to microsporangium. Gametophyte. So if I write male gametophyte क्या है? Pollen. और angiosperm में female gametophyte क्या है? Embryo sac. तो ये तो करेक्ट नहीं होगा. Megasporangium, that is female part. It is the ovule. And microspore, I already told. Microspore is what? The haploid spore. जिससे क्या बनेगा? पोलन ग्रेन. ओके, सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी. ओके, इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ. C4 प्लांट्स के लिए हमें एक चीज जानना है कि C4 में फोटोसिंथेटिक पाथवे है C4 साइकिल, अगेन C3 साइकिल. That means C3 cycle is the basic pathway for photosynthesis. Along with that, C4 plants के पास C4 cycle होते हैं and they have a special anatomy that is called Kranz anatomy. Kranz anatomy में mesophyll cell and bundle sheath cell both take part in photosynthesis, right? And which cell has rubisco that we know is the bundle sheath cell. Okay, so what is the question asked? In the leaves of C4 plants, malic acid formation. Where does the malic acid formation occurs? Okay, so if you see the first reaction, it is CO2 plus PEP, phosphoenol pyruvate. That is the initial carboxylation step. Then it forms a 4-carbon compound, oxaloacetic acid. It forms the malic acid, and this malic acid, where it is forming? It is in the mesophyll. Then malic acid come to the bundle sheath, undergo decarboxylation. So a 4-carbon malic acid convert into pyruvic acid and this carbon dioxide is released, that is used in the C3 cycle, right? And this pyruvic acid will go back and recycled into
phosphoenol pyruvate and can again take part in the carboxylation step in the mesophyll cell. So यहाँ पे क्या लिखा था कि मैलिक एसिड कौन से सेल में बनता है, C4 प्लांट्स में, will go with the mesophyll cell. Okay, let's see the other option. Gut cells. Gut cells are used in stomata. बंडल शीट सेल्स, नो, बंडल शीट सेल में मैलिक एसिड जो है मेसोफिल से बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, नॉट फॉर्म्ड इन द बंडल शीट. एंड एपिडर्मिस, इट इज तो नॉट ओनली, राइट. Okay, 104. The plant hormone used to destroy dicotyledonous weeds in a field is. What is the plant hormone that is used? What is the plant hormone that is used as weedicide? That is synthetic auxin, and that synthetic auxin is 2,4-D. Okay, it is directly taken from NCERT. You know nicely it is written. It is synthetic auxin 2,4-dichlorophenoxyacetic acid that is used as a weedicide to kill the dicot weed. और ये grass lawn formation में use होता है, right? So we'll go with the option number C. What are the other option? NAA, naphthalene acetic acid. It is also synthetic. IBA, indole butyric acid. It can be both synthetic and natural, right? And IAA, it is indole 3-acetic acid, right? So all these are auxin, but mainly 2,4-D is used as a weedicide. 105. Respiratory quiescent value of tripalmitil. RQ value. RQ value is find out by the ratio of volume of CO2 evolve and volume of oxygen consume. और RQ वैल्यू से हम लोग टाइप ऑफ सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्राइपल्मिटिल, इट इज रिप्रेजेंटिंग फैट. ओके, एंड द RQ वैल्यू ऑफ फैट इज लेस देन 1, दैट इज 0.7. If you see 1, it is the RQ value of the carbohydrate in aerobic respiration. 0.9 it is of protein, and more than 1 it is of organic acid. So for 105 we'll go with option number D. 106. While planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following step would not be relevant? Right? Artificial hybridization, जहाँ पे हम लोग दो प्लांट ब्रीड लेते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का? सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिजायरेबल कैरेक्टर. अगर अभी ये सिलेक्शन जो होगा, जिस प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें एक प्लांट को हम लोग मेल और दूसरे प्लांट को फीमेल कंसिडर करेंगे. अभी अगर ये प्लांट जो हमने चूज किया है, अगर ये बाइसेक्सुअल है, व्हाट आर द बाइसेक्सुअल प्लांट्स आर आल्सो नोन एज मोनोएशियस, राइट. तो यहाँ पे जो मेल प्लांट है उसके तो हम लोग पोलेन यूज करेंगे, लेकिन जो फीमेल प्लांट है उसमें हमें एक स्टेप करना होता है, दैट इज इमास्कुलेशन. इमास्कुलेशन इज द स्टेप टू रिमूव द एंथर फ्रॉम द bisexual flower of the female plant that we are going to consider the female plant, right? And why we do emasculation? To prevent any chance of the autogamy. So if the plant is already dioecious, okay, what plant we have taken? Dioecious, that means unisexual. तो यहाँ पे जो फीमेल प्लांट है उसमें ऑलरेडी फीमेल फ्लावर है, इट डज नॉट इवन हैव एंथर. सो डू वी नीड टू डू इमास्कुलेशन? नो. सो दैट मीन्स विच बिकम नॉन रिलेवेंट, that is emasculation. So in 106, very easy question, we'll go with the option number B. Which among the following are raw materials required for the light reaction? Okay, light reaction that occurs in photosynthesis is to utilize the light and converting it into ATP. Okay, that is also known as photophosphorylation. हमें पता है दो तरीके का photophosphorylation है, एक है साइक्लिक, एक है नॉन साइक्लिक. साइक्लिक में PS1, सिर्फ PS1 यूज होता है साइक्लिक में, जबकि नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों यूज होते हैं, राइट. तो PS1 और PS2 में कॉमन क्या है? बोथ प्रोड्यूस ATP. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ATP प्रोडक्शन, तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? ADP. Yes or no? तो ADP will bind with the inorganic phosphate to produce ATP. So one of the raw material we got, that is ADP, right? Now जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस होता है, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो इफ यू सी नॉन साइक्लिक uses water, that means water is the raw material again in the light reaction. So what happened here? Water breaks down into protons, oxygen
and it releases electron, and that electron enter in the photosystem too, right? So water becomes another raw material here. Then what happen here? NADP undergo reduction in case of light reaction, where NADP plus accept hydrogen to form NADPH. So what we got here? We got that what are the raw materials? One is ADP, one is water, another one is NADP. So we'll go with the option number C. Correct? The regulator which promote nutrient mobilization and retards aging senescence of plant parts. Okay, so what is the plant hormone that promote nutrient mobilization, okay, and जो senescence को या aging को prevent करता है? That is nothing but cytokinin. Cytokinin hormone. The name came from the word cytokinesis, that is cell division. ऐसा हार्मोन जो सेल डिविजन को प्रोमोट करता है. How to promote the cell? How to promote the cell division? By providing nutrient to the cell, and at an area where new cells are formed, that means what? That means the aging. That means the aging will be prevented, because every cell are new. Always the old cell will be replaced by the new cell. So here we'll go with the word cytokinin. So 108 will go with option number A. Abscisic acid promotes senescence, right? Gibberellin delay senescence, but here it will not promote nutrient mobilization or preventing senescence. That is not the purpose of the gibberellin. And auxin will not that. Even auxin, what the auxin does? Auxin prevent the abscission of the young parts, right? But auxin promote again the abscission of the older parts. Okay, so senescence के साथ auxin का directly कोई relation नहीं है. So your best option will go with the option A. Okay, next is 109, pyruvic acid. The key product of glycolysis can have many metabolic fate. What does it form under aerobic condition? Glycolysis का last product है pyruvic acid. Pyruvic acid have actually 3 metabolic fate. अगर pyruvic acid aerobic reaction में use हो, aerobic respiration में use हो, then it will go to the matrix of mitochondria, और उसके बाद होगा link reaction. लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए, इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये कौन करता है? ये एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, दैट कॉज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ पायरुविक एसिड. इस प्रोसेस में NADH+ बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, राइट? तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जा रहा है तो क्या बन रहा है हमारा? एसिटाइल कोएंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड. पायरुविक एसिड अगर एल्कोहल फर्मेंटेशन में जा रहा है, जैसे कि ईस्ट में जा रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ethanol and carbon dioxide. That is again another fate. What is the other metabolic fate? It can be in a lactic acid fermentation, जहाँ पे pyruvic acid lactic acid में convert हो जाएगा. लेकिन इथेनॉल और लैक्टिक एसिड कहाँ होगा? जब फर्मेंटेशन होगा, दैट इज एनारोबिक. हमें क्वेश्चन पूछा गया है एरोबिक में क्या बनेगा? दैट इज एसिटाइल कोए एंड कार्बन डाइऑक्साइड. विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. 110 assertion, the pre-pollination growth of male gametophyte occurs inside the microsporangium. So the pre-pollination, that means before pollination, male gametophyte का growth. Who is the male gametophyte? Pollen grain. Pollen grain का growth कहाँ होता है? Inside the microsporangium. Yes or no? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. देखो एंथर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम. उसके अंदर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, और उसके सेल को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल. फिर होगा मियोसिस, फिर होगा माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन. माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन. अभी पोलन ग्रेन माइटोसिस होगा उसमें, राइट? और माइटोसिस से 2 सेल बनेंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल. नाउ दिस जर्मिनेटिव सेल विल अगेन डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स एंड वेजिटेटिव सेल विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन. अभी जब तक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, इसको क्या कहते हैं? 2 सेल स्टेज. और जब मेल गैमेट बन जाए तब क्या कहते हैं इसको? 3 सेल स्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन. एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 2 सेल में भी होता है, 3 सेल में भी होता है. माने मैक्सिमम जो ग्रोथ है मेल गैमेट का वो कहाँ पे हो जाता है? बिफोर
प्री पॉलिनेशन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, और बाकी जो ग्रोथ है वो कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये करेक्ट और नॉट? यस, 100% करेक्ट। सो इट विल डेवलप 2 सेल और 3 सेल स्टेज, फिर पॉलिनेशन होगा एंड इट विल फॉल ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा इसको रिसीव करेगा और स्टिग्मा पे जो है फर्दर ग्रोथ होगा, इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब, राइट, एंड इट विल ग्रो। So assertion is correct. Let's see the reason. Growth of the entire female gametophyte. Now what is female gametophyte? That is embryo sac. It occurs inside the megasporangium. Megasporangium is ovule. So क्या embryo sac development पूरी तरीके से megasporangium में होता है? Yes, because it is the nature of the seed habit. Yes or no? ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल, एंड वहाँ पे भी रिडक्शन डिविजन होगा, इट विल डेवलप इनटू मेगास्पोर, मेगास्पोर विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो सेक, एंड इट इज कंप्लीटली इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ओके, आर वी करेक्ट? यस। So both assertion and reason are correct. But is the reason, is the answer of assertion? Is it explaining? No. One is talking about the male part, one is talking about the female part. One is related to the microsporogenesis, other is to the megasporogenesis. So they are not related. So I'll go with the option number B. If both assertion and reason are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion. 111. The gaseous plant growth regulator is used in plants too. First of all, ethylene is the gaseous plant regulator, or you can say the plant hormone. तो यहाँ पे according to ethylene we have to see the options. पहले ऑप्शन पे दिया हुआ है promotes rapid internode or petiole elongation in deep water rice plant, and I will go with option number A. राइट, इथाइलिन जो है वो प्रोमोटर भी है, वो इनहिबिटर भी है। कुछ फंक्शन है इथाइलिन का, दैट इज प्रोमोटिंग। यहाँ पे हमें प्रोमोटिंग वाला फंक्शन दिख रहा है, जहाँ पे वो लगभग जिबरेलिन जैसा जो है फंक्शन कर रहा है। ये सो नो, क्योंकि हमने बार बार यही चीज पढ़ा है कि जिबरेलिन हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, बट हियर इन द डीप वाटर राइस प्लांट द फंक्शन इज डन बाय द इथाइलिन। ओके, करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी में देखते क्या दिया गया था, स्पीड अप द मोल्टिंग प्रोसेस, दैट इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन, राइट। Helps it to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. Okay, and this function related to dormancy. Which hormone cause dormancy? The stress hormone, that is abscisic acid. And help overcome apical dominance. Apical dominance is caused by auxin, and who overcome apical dominance? That is cytokinin. तो सारे function clear हो गए. So for this we'll go with option number A. Okay, 112. Heterophilous development due to environmental changes is an example of heterophilous. That means two different shapes or two different types of leaves in the single plant, either in the different stages of life, जैसे कि juvenile stage और mature stage में अलग अलग टाइप के लीव्स होंगे, या तो डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट हैबिटेट्स में लीफ जो है अलग होंगे। ओके, इसको कहा जाता है हेटेरोफाइली। अभी हेटेरोफाइली किसका एग्जांपल है? ये प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। पहले तो देख लेते हैं प्लास्टिसिटी कहाँ पे है, हमारे ऑप्शन सी पे है। आई विल गो विथ प्लास्टिसिटी। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या है, एक चीज याद रखो यहाँ पे कि अगर कोई चेंजेस है, ये चेंजेस डेवलपमेंटल भी हो सकता है या तो एनवायरमेंटल भी हो सकता है। अगर कोई चेंजेस है जिसके वजह से प्लांट का जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो चेंज हो जाए, और ये पाथवे में चेंज होने की वजह से प्लांट के मॉर्फोलॉजी में भी चेंज हो, इस स्टेप्स को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग? प्लास्टिसिटी। डिड यू गेट माय पॉइंट? एनी चेंजेस हैपन इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस और इन द आउटसाइड that relate with the change in the metabolic pathway, and that causes change in the morphology referred to as plasticity, और plasticity का ही example है heterophyly. Okay, I hope it's clear. Now if you see the other things, bolting अभी हम बोल रहे थे, है ना, जो जिबरेलिन है it has the function of bolting, जहाँ पे elongation of stem occurs, right, elongation of internode occurs just prior to flowering. Okay, ये रोजेट प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलेगा, जिबरेलिन का फंक्शन है। एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है? It is the new biomass formation in the plant at a particular time. It is called efficiency index. और respiratory climactic,
इट इज द फंक्शन ऑफ द इथाइलिन। इथाइलिन हम सबको पता है इट इज ए फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन, एंड ड्यूरिंग राइपेनिंग इथाइलिन का सिक्रेशन जब ज़्यादा होता है वो रेस्पिरेटरी रेट को भी इंक्रीज कर देता है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। ओके, सो ये सारे रिलेटेड नहीं है हेटेरोफाइली से, सो बेस्ट ऑप्शन विल गो विथ ऑप्शन सी। ओके, 113, द इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज thick and discontinuous layer, thin and discontinuous, thick and continuous, thin and continuous. First of all you should know what is intine. pollen grains में दो वॉल होते हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन होता है, राइट, और स्पोरोपोलेनिन के वजह से एक्साइन जो है ये डिसकंटिन्यूअस होता है एंड इवन थिक भी होता है। जिस पार्ट पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है वो पार्ट इतना थिक नहीं होगा, राइट, और जिस पार्ट पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है वो वाला पार्ट थिन होगा, और जिस पार्ट पे स्पोरोपोलेनिन है वो वाला पार्ट थिक होगा, राइट। सो ये एक्साइन जो है आउटर लेयर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जिस जगह पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है इसको क्या कहते हैं, जार्म पोर। बट इफ यू सी इंटाइन थिन और कंटिन्यूअस होता है, और इसमें ना स्पोरोपोलेनिन होता है, राइट, और ये किससे बनता है, सेलुलोज और पेक्टिन से, लाइक एज ए नॉर्मल प्लांट से। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। अगर एक्साइन होता तो क्या बोलते, इट इज थिक एंड डिसकंटिन्यूअस लेयर मेड विथ स्पोरोपोलेनिन। ओके, क्लियर। 114, which of the following statement is इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, एकदम ध्यान से। तुमने देखा होगा इमीडिएटली आई हैव मार्क द क्वेश्चन। ओके, एग्जाम में भी यही करना है। नंबर ए, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं LHC, called antenna molecules except one molecule of chlorophyll A. Okay, this is correct. LHC has hundreds of pigments plus proteins, right? उसमें सारे accessory pigments होते हैं, जबकि chlorophyll A is the part of reaction center, ये LHC का part नहीं है। Correct statement है। Characteristic shape of Z scheme क्या है? Non-cyclic photophosphorylation is formed when all the electron carriers are placed in a sequence on a redox potential scale, right? Z scheme नॉन साइक्लिक है, जिसमें सबसे पहले आता है PS2, राइट, PS2 when it give electron to the primary electron acceptor। ये क्या है, ये है हाफ हिल। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जितने भी यहाँ पे कैरियर्स होंगे, जिसको भी इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो क्या है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। अगेन PS1 के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और PS1 अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, अप हिल। सो इट गिव ए Z लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड Z स्कीम। तो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रेसेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A एंड B। एक्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है जो TW इंगलमैन ने डिस्कवर किया था, और यू कैन से फाइंड आउट किया था, प्रपोज किया था। सो एक्शन स्पेक्ट्रम उस ग्राफ में इट शोज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वो क्लोरोफिल A पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रेसेंबल करता है, नॉट विथ क्लोरोफिल B। इसीलिए क्लोरोफिल A इज द मेजर पिगमेंट, राइट, नॉट क्लोरोफिल B। Chlorophyll B is a accessory pigment. So this option becomes wrong, and we have to search wrong only. So we'll go with the option number C. Let's see the D also. Use of radioactive carbon-14 Melvin Kelvin in algal photosynthesis led to the discovery of C3 cycle. इसीलिए C3 cycle को Kelvin cycle भी बोलते हैं, और उन्होंने radioactive carbon यूज किया था। ये करेक्ट है, yes. Okay, so question number 115, starting from the innermost part, the correct sequence of parts in an ovule. So what is the most common type of ovule in angiosperm? That is anatropous. So we can see here an ovule that is attached with the placenta. So this part will be placenta. We know the stalk is called funicle. Okay, so this are not has been asked. यहाँ पे पूछा है innermost part क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आउटर मोस्ट देख लेते हैं पहले,
So these are integuments. There are two types of integuments, two layer, क्योंकि एंजियोस्पर्म में बाइटेगमिक होता है, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट का काम क्या है? टू गिव प्रोटेक्शन टू द ओव्यूल, फिर द टिश्यू ऑफ द ओव्यूल दैट विल बी नोन एज द न्यूसेलस। ओके, सो it is the female gametophyte, and in the female gametophyte at the micropylar end we have synergid and the egg cell. Okay, तो I think यहाँ पे हो गया egg apparatus और ये हो गया हमारे 3 एंटीपोडल और यहाँ पे सेंट्रल सेल में होगा 2 पोलर न्यूक्लियस। तो अगर क्वेश्चन की तरफ जाए हम लोग, यहाँ पे लिखा है इनर मोस्ट पार्ट, तो सबसे इनर मोस्ट क्या है यहाँ पे? दैट विल बी एग, यस एग इज देयर, देन इट शुड बी एम्ब्रायो सेक, तो यहाँ पे न्यूसेलस है, इट विल नॉट बी देयर। सो लेट्स सी यहाँ पे एम्ब्रायो सेक थर्ड में दिया हुआ है, सो इट्स नॉट दैट। ओके, सो पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है एग, करेक्ट, एम्ब्रायो सेक, यस दिस इज एग, दिस इज एम्ब्रायो सेक। उसके बाद क्या आना चाहिए? न्यूसेलस, तो यहाँ पे है न्यूसेलस, एंड व्हाट इज द लास्ट वन? दैट इज इंड्यूकमेंट। सो दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सो वी शुड गो विद द ऑप्शन नंबर बी। 116, in which one of the following processes carbon dioxide is not released? माने कौन सा, मतलब कौन सा प्रोसेस जो यहाँ पे है वो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता। ओके, लेट्स सी टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो भी 2 स्टेप में रिलीज होता है। ओके, टीसीए साइकिल हैव 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी, ये तो लिंक रिएक्शन है जहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, हमें पता है एसिटाइल में 2 कार्बन है, पायरुविक में 3 कार्बन, सो इट हैज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें भी है, राइट, पायरुविक एसिड, इफ यू सी इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, pyruvic acid 3 carbon, ethanol has 2 carbon, that means here also you can see release of carbon dioxide. Lactic acid fermentation is our correct answer. Okay, we'll go with the option D, क्योंकि pyruvic acid में 3 carbons होता है, lactic acid में भी 3 carbon है, that means there is no carbon dioxide release. Okay, 117, where is the respiratory electron transport system, that is ETS, located in plant? ETS कहाँ पे present है? Okay, mainly it is asked as respiratory, that means mitochondria में कहाँ पे होगा? तो mitochondrial matrix में नहीं होगा, mitochondrial matrix में Krebs cycle और link reaction होते हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो यूज ही नहीं होता इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, राइट। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस नहीं, वहाँ पे भी ईटीएस नहीं होता। ईटीएस कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी, एंड वी नो इट हैज ए फोल्डेड नेचर, राइट। और ईटीएस में टोटल 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 2 मोबाइल कैरियर्स होते हैं, ऑल आर अरेंज्ड इन what? Christie. So we'll go with option number C. Who coined the term kinetin? Kinetin क्या है? Kinetin is cytokinin, और kinetin was first discovered, isolated and purified, crystallized from herring fish sperm DNA. Okay, तो kinetin जो नाम है वो किसने दिया था? Who coined the term kinetin? I'll go with the Skoog and Miller. ओके, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ये दिया गया था ऑप्शन ए में। ऑल ऑफ अस नो दे आर रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, राइट। और उन्होंने क्या देखा था? बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास। कॉजन्स रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन, सो नॉट फॉर काइनेटिन। ई कुरोसावा, डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन, राइट। सो विल नॉट गो विद देम, विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, okay, let's see what happens. A, reduction division occurs in the megaspore mother cell. Megaspore mother cell is diploid, और इसमें reduction division मतलब meiosis होता है to produce haploid spore called megaspore, and these megaspore later develop into female gametophyte, that is embryo sac, और embryo sac में further 3 times free nuclear division होता है, that is mitosis होता है, और उससे क्या बनता है? उससे एम्ब्रायो सेक बन जाता है 7 celled 8 nucleated. That means option A is correct, right? Let's see the B option. There are numerous
antipodal cell. Numerous antipodal cells are there? No. We can see in the embryo cell, these are synergids. Then there is a egg cell, okay, filiform apparatus at the micropyle, polar nuclei in the central cell, and at the chalaza end, there are 3 antipodal. How many antipodals? 3. They are not numerous. Egg has a filiform apparatus? No. Filiform apparatus are finger-like structure present above the synergid at the micropyle end of the embryo cell, right? It's not with the egg. A small central cell is present. Is the central cell small? No, it is large, and later यही central cell जो है फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म में तो एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, एबंडेंट न्यूट्रिशन होता है, राइट? सो विल नॉट गो विद द ऑप्शन डी. व्हिच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए. इन क्रान्स एनाटॉमी द बंडल शीट सेल्स हैव. एक बार हमने डिस्कस भी किया है क्रान्स एनाटॉमी किस में होते हैं. क्रान्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स में. C4 प्लांट्स एक्चुअली एडाप्टेड है फॉर not doing photo respiration. They are adapted for tropical condition. They can survive at high light, high temperature and very low CO2. तो उनमें जो adaptation है वो है क्रान्स एनाटॉमी. उसके रिगार्डिंग कुछ आंसर हमें करना है. तो क्रान्स एनाटॉमी में बंडल शीट सेल कैसा होता है? तो क्रान्स एनाटॉमी एक बार देख लेते हैं. ये है वास्कुलर बंडल, ओके, ऐसा सोच लो वास्कुलर बंडल है. वास्कुलर बंडल के ऊपर कौन सा सेल होता है? बंडल शीट सेल. और बंडल शीट सेल को कौन कवर करके रखा है? मेसोफिल सेल, ओके, कवर्ड बाय मेसोफिल सेल. सो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल, क्योंकि बंडल शीट सेल में रूबिस्को है और C4 प्लांट्स का एडाप्टेशन है नॉट टू अलाउ रूबिस्को टू मीट विद ऑक्सीजन, बिकॉज व्हेन रूबिस्को विल मीट विद ऑक्सीजन इट विल कॉज फोटो रेस्पिरेशन. तो ऐसा बंडल शीट कैसे बनाए? अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा तो रूबिस्को जो है इट विल गेट ऑक्सीजन एंड टू कॉज फोटो रेस्पिरेशन. तो कैसा होना चाहिए? इट शुड हैव थिक वॉल, यस, इट शुड नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, नहीं होना चाहिए, सो टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि बंडल शीट इज एसोसिएटेड विद द ग्लूकोज प्रोडक्शन, बिकॉज C3 साइकिल कहाँ पे होगा? बंडल शीट में होगा. इसीलिए बंडल शीट में थिक वॉल, no intercellular space and a large number of chloroplasts. So here we'll go with option number B. 1 to 1 match the columns. Very interesting. Let's see. This question relate with the respiration chapter. देखो क्या लिखा है? 5 कार्बन कंपाउंड. इनमें से 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. 2 carbon compound is acetyl CoA, so I'll go with A4 and B with 1. 6 carbon compound is citric acid, that is C is 3, and D 3 carbon compound is pyruvic acid. So we got 4 1 3 2. Where it is 4 1 3 2? We'll go with option number C. Very easy. 1 2 2 assertion. Plant growth is unique because plants retain the capacity of unlimited growth throughout their life. Yes, animals में definite growth होता है, plant में undetermined growth होता है, undefinite growth होता है, right? And why this happen? Because they have a special cell that is called meristem. तो क्या यहाँ पे जो assertion दिया है क्या उसका reason लिखा हुआ है यहाँ पे? The ability of the plant is due to the presence of meristem at certain location in the body. It's correct. तो प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, उसकी वजह क्या है कि दे हैव मेरिस्टेम सेल, क्योंकि मेरिस्टेम सेल एक्टिवली डिवाइडिंग है और पर्टिकुलर लोकेशन है, बिकॉज द ग्रोथ इज अगेन लोकलाइज. प्लांट ग्रोथ में 3 पॉइंट जो है सीख लो. प्लांट ग्रोथ ओपन ग्रोथ होता है, प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, कंटिन्यू फॉर लाइफ स्पैन, एंड प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड. ओके, सो हियर रीजन इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन. सो without any worry I will go with option number A. Which statement is wrong for Krebs cycle? There are 3 points in the cycle. Okay, let me mark first. There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus. It is correct. Okay, so Krebs cycle में जो है 3 बार ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जहाँ पे NAD प्लस को NADH प्लस में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे कि एक स्टेप है यहाँ पे आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी होते हैं, इतना तुम्हें नहीं चाहिए, बस इतना याद रखो। फिर एक स्टेप है, तो इस स्टेप पे एक बार होगा NADH प्रोडक्शन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू सक्सिनिल कोए, तो यहाँ पे भी एक बार होगा। तो ये जो दो स्टेप्स है इसमें क्या बनता है NADH+, और कहाँ पे बनता है एकदम लास्ट स्टेप पे जाके, that is malic acid converting into oxaloacetic acid. Okay, so this is the correct option. The cycle start with condensation of acetyl CoA with malic acid. No, condensation reaction start from acetyl coenzyme A plus oxaloacetic acid. 2 carbon 4 carbon converting into 6 carbon citric acid. एंजाइम इज साइट्रेट सिंथेटिस, राइट। तो ये जो बी ऑप्शन है ना ये रॉन्ग है, लेकिन हमें तो रॉन्ग ही ढूंढना है, देन विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स कंफर्म द अदर ऑप्शन। सी में क्या दिया है, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ सक्सिनिल कोए टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसिस। यस, ये क्रेब्स साइकिल का SLP रिएक्शन है जहाँ पे GTP बनता है इक्विवेलेंट टू ATP। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD+ इज रिड्यूस्ड। यस, इट इज सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड। कौन सा एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, इट इज अगेन अनदर ऑक्सीडेशन स्टेप। सो ऑल आर करेक्ट, राइट। विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। 1 to 4. Scientists are trying to transfer apomictic genes into hybrid varieties of several of our food and vegetable crops so that, first of all, apomixis एक asexual reproduction है, लेकिन इसको कहते हैं mimicry of sexual reproduction, क्योंकि इसमें sexual reproduction जैसे seeds बनते हैं। अभी इन seeds से जो progenies होंगे, plant progenies, they will maintain the parental characteristics। तो अगर पेरेंट हाइब्रिड है, हाइब्रिड हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू गेट सम सुपेरियर क्वालिटीज, लेकिन वही हाइब्रिड सीड से जो प्लांट होगा, राइट, वहाँ पे तो हमें हाइब्रिड क्वालिटीज मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें जो सीड मिलेंगे उसमें हमें मिलेगा वेरिएशन। दैट मीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द हाइब्रिड प्लांट्स विल नॉट गेट आवर डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैसे हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिल सकता है, अगर हाइब्रिड प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके एपोमिक्टिक सीड बनाए। एपोमिक्सिस क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें वेरिएशन नहीं होगा। और वहाँ पे बेनिफिट क्या है कि फार्मर्स को हर साल हाइब्रिड सीड नहीं खरीदना पड़ेगा। मतलब एक बार हम लोग हाइब्रिड सीड खरीदेंगे, फार्मर एक बार खरीदेगा और उस सीड्स को यूज करेंगे, उससे प्लांट होगा, एंड देन आफ्टर जनरेशन एपोमिक्सिस के वजह से क्या मिलेगा, हमें ऐसे सीड्स मिलेंगे that will maintain the hybrid characters. Okay, isn't it great? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, what is the benefit, that farmers no need to buy hybrid seeds every year. Why? Because it will maintain the hybrid characters as there will be no segregation. Why there is no segregation? Because there is no sexual reproduction only. 1 to 5. Which of the following statements is incorrect? First, light reaction is less temperature sensitive than dark reaction. It is correct. Dark reaction is more temperature sensitive क्योंकि dark reaction में बहुत सारे reactions हैं, chemical reactions, और chemical reactions को enzymes control करता है, और enzymatic function को कौन control करता है, temperature. So dark reaction will be more sensitive. So it is correct. Temperate plants have lesser temperature optimum than plants adapted to tropical climate. Of course, temperate areas में temperature कम होता है, so their optimum temperature will be less who are growing at the temperate region compared to the tropical who are nearby equator. Correct है? The effect of water as a factor is more through its effect on plant rather than directly on photosynthesis. Okay, this directly you can see it is a NCERT line in the photosynthesis chapter in the factor part, right? इसमें कहा क्या गया है, देखो वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में सिर्फ डायरेक्टली यूज नहीं होता, बहुत सारे वाटर का होना ना होना फोटोसिंथेसिस को काफ़ी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। What is the direct use of water in photosynthesis? Water तो खुद ही substrate है। When we write the reaction of photosynthesis, how we write? We write CO2 plus water, right? तो ये हो गया water का direct role। तो indirect role क्या है? What is written here? That as a factor बहुत ज़्यादा है। अभी अगर water कम हुए
अगर प्लांट में वाटर स्कार्सिटी है, इट प्लांट विल गिव ए स्ट्रेस सिग्नल, okay, or abscisic acid will close the stomata, right? And if stomata is closed, then the entry of CO2 will decrease, and entry of CO2, if it is decreases, then rate of photosynthesis will also decrease, right? So water not only affect directly, it also affect in various other ways. अभी यहाँ पे लिखा है कि वो सारे जो अदर इफेक्ट्स है वो डायरेक्ट इफेक्ट से भी ज्यादा होता है, एंड इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. लेट्स गो विद द डी. C3 plants respond to higher temperature, show higher photosynthetic rate. क्या C3 plant adapted है for the higher temperature? No. C3 plants का optimum temperature है 20 to 25 degree centigrade, जबकि C4 plants का optimum temperature है 30 to 40 degree centigrade. ओके, एंड इन द हायर टेम्परेचर C3 प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक रेट होगा वो भी लो होगा, बिकॉज C3 प्लांट सफर फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन. सो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बट वी आर सर्चिंग द रॉन्ग ओनली, इनकरेक्ट ओनली. विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी. मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग द एक्टिविटी एंड द फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व्ड. कुलम 1 में जो है कुछ हमें एक्टिविटीज दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है. And in column 2, the name of hormones are given. Let's see. Thinning of cotton. Thinning होता है acceleration of abscission of fruits and flowers. और ये thinning कौन से प्लांट में होता है? कॉटन, चेरी, वालनट. और ये हम यूज करते हैं एथेफोन. एथेफोन इज commercial form of ethylene, aqueous solution of ethylene. Okay. So A I will go with 4. Production of new chloroplast in leaves. Production of leaves, production of lateral branches, production of chloroplast, all goes to cytokinin. So I'll go with B1. Xylem differentiation, division, elongation, differentiation, all go with auxin. Stress hormone, that is abscisic acid, because it responds to different stress condition. So we got 4132, option number B. Okay, 1 to 7. In angiosperm, ovule or megasporangium is attached to the placenta by stalk known as. Okay, angiosperm, the ovule. The most common type of ovule we study is anatropous, and you can say anatropous ovule is attached to the placenta by the help of a stalk. Can you see the stalk here? This part. What is the stalk called? Funicle, right? So this is funicle. This is the stalk. And this is remaining part of the body. इसको क्या कहेंगे हम लोग? Body of ovule. So body of ovule and stalk, where do they meet? This fusion part is called hilum. These are integuments. You can see 2 integuments, outer and inner integuments. Integuments are protective covers. The tissue part of the ovule is called nucellus. The part, you can see this part, the part where integuments are absent are called micropyle. The part where integument is absent is called micropyle, and the part opposite to micropyle is called the chalaza. Okay, you got your answer. So we are asked what is the stalk. We'll go with funicle. 1 to 8. The number of substrate level phosphorylation, in short SLP, in one turn of citric acid cycle. Citric acid cycle is the tricarboxylic acid cycle. It was given by Hans Krebs, so it is called Krebs cycle. हमें पूछा गया है साइट्रिक एसिड साइकिल में कितने बार SLP रिएक्शन होते हैं, माने कितने बार डायरेक्ट ATP या ATP का कोई इक्विवेलेंट बनता है. तो वहाँ पे एक ही बार स्टेप होता है, that is succinyl coenzyme A converting into succinic acid, and the enzyme used in this case is thiokinase. Okay, and here we get GTP, and GTP is equal to ATP. That means here our answer is 1 step of the substrate level phosphorylation. 1 to 9. Assertion, in light reaction of photosynthesis, light is required for the functioning of PS1 and PS2 and production of NADPH ATP. ताकि लाइट रिएक्शन में लाइट चाहिए किस लिए? कि PS1 और PS2 फंक्शन कर सके, ओके, और NADPH और ATP बना सके. ओके, क्या ये करेक्ट है? यस.
PS1 और PS2 को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, ओके। और ये वाटर कर सकता है। अभी वाटर को ब्रेक करने के लिए भी क्या चाहिए, लाइट चाहिए, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगा तो फिर ये क्लोरोफिल ए जो है PS1 या PS2 में कहाँ पे है, इन द रिएक्शन सेंटर, वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो फोटोलाइसिस नहीं होगा, ओके। ATP NADPH कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स assertion is 100% correct, right? Reason, dark reaction does not occur in light. First of all, this is not the reason itself. और ये स्टेटमेंट भी गलत है। डार्क रिएक्शन occurs in light. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों लाइट के प्रेजेंस में होता है, राइट? और डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, okay. So dark reaction will occur in light, wrong statement. So we'll go with if the assertion is true but the reason is false, correct. 1 to 9 C. Okay, flowering and for synchronizing fruit set in pineapple, I'll go with ethylene. It's a direct question, nothing to do about it. However, auxin also help in the flowering of pineapple, okay. But यहाँ पे दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड जो कि है नहीं। जियाटिन क्या होता है, इट इज द प्लांट साइटोकाइनिन, और ये है GA, that is gibberellic acid, okay. So these are non-relevant. I'll go with ethylene. Assured seed set is possible even in absence of pollinating agents and no pollens, as no pollens are lost from the flower, okay. कोई भी पोलन फ्लावर से लॉस नहीं हो रहा क्योंकि फ्लावर जो है क्या होता है, क्लोज फ्लावर होता है, एंड दैट क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, and the process is called cleistogamy. That means flower after maturation also it will look like bud, and if the flower is not open only then pollens will not be lost and there will be 100% chance of seed formation, okay. तो ये feature हमें मिलेगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। I'll go with option A. चेस्मोगेमस बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन ये ओपन फ्लावर है, and you will be surprised to know because it is open there are less chance of autogamy and more chance of xenogamy, that is cross pollination. Guytonogamus, that is seen in a bisexual plant with unisexual flower, जहाँ पे pollination दो अलग अलग फ्लावर में होते हैं जबकि दो फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, राइट। और xenogamous, it is a pure cross pollination, that is pollination between two different plants, okay. So we'll go with option number A, 131 A option. Okay, 132, what reaction is incorrectly paired with its location? ATP synthesis, inner membrane of the mitochondria. Okay, ATP synthesis, maximum ATP synthesis occurs in the electron transport system, in aerobic respiration or any kind of respiration. Then inner membrane of the mitochondria, that is Christie. So it is a correct pair, not incorrect. Fermentation, either alcohol fermentation or lactic acid fermentation that occur in the cell cytosol, right, in the fluid part of the cell, correct है. Glycolysis भी cell cytosol, the fluid part of the cell, correct. Krebs cycle, Christie of the mitochondria, Krebs cycle occurs in the mitochondria but not at the Christie, occurs in the matrix, मतलब ये जो है ये incorrectly pair है. So for that option D I will go with. Which of the following statements regarding photorespiration are true? Photorespiration occurs as Rubisco catalyze RUBP and oxygen. Okay, so Rubisco, that is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. इसमें दो फंक्शंस होते हैं इस एंजाइम में, कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। अगर रूबिस्को इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन अगर ये ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी शो करे तब हमें देखने के लिए मिलेगा फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, जैसे कि हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ यूजेबल कार्बन डाइऑक्साइड, यस, फोटो रेस्पिरेशन में CO2 लॉस होता है जिसके वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। Photo respiration is metabolically expensive pathway. Yes, it utilizes energy. Photo respiration is avoided when CO2 is abundant. It is also correct.
क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, लो CO2 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, बट इफ CO2 इज अबंडेंट देन फोटो रेस्पिरेशन कैन बी अवॉइडेड. दैट मीन्स हियर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. विल गो विद डी ऑप्शन. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structures are. So in a fertilized embryo sac, okay, let's see synergid. Synergid is haploid, is present in the embryo sac, yes. Zygote, zygote is diploid, that is formed by syngamy. Primary endospermic nucleus that occurs due to triple fusion. तो यहाँ पे तो हमें मैच हो ही रहा है haploid, diploid and triploid structures. बाकी देख लेते हैं. सिनर्जिड हो सकता था, लेकिन एंटीपोडल भी हैप्लॉइड हो गया है ना, और पोलर न्यूक्ली भी हैप्लॉइड है, तो ये नहीं होगा. एंटीपोडल हैप्लॉइड, सिनर्जिड हैप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड है, नॉट मैचिंग. सिनर्जिड इज हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्ली हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड. सो दिस विल नॉट बी आवर करेक्ट ऑप्शन. विल गो विथ ए. What is the basis of the chemiosmotic theory of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria? Chloroplast और mitochondria में ATP formation, okay, it is based on chemiosmotic theory that has been proposed by Peter Mitchell, okay. और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और ये किस पे बेस है? बेस है प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्रोस ए मेम्ब्रेन, है ना. अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट में देखें, क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ओके. ध्यान से देखो, यहाँ पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये है मेम्ब्रेन, यहाँ पे है स्ट्रोमा और यहाँ पे है ल्यूमेन. ल्यूमेन में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है ना, और ये आ गया हमारा ATP सिंथेस F0 और ये क्या है F1. सो यहाँ से हाइड्रोजन, कहाँ से? ल्यूमेन से हाइड्रोजन जो है ये पास होगा टुवर्ड्स द स्ट्रोमा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और स्ट्रोमा में ATP बनेगा. ये होगा क्लोरोप्लास्ट में. ओके, लेट्स सी इन द माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट हैपन हियर. दिस इज द क्रिस्टी, राइट, क्रिस्टी दैट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और ये है मैट्रिक्स. यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऐसा होगा F0 एंड F1 एंड हाइड्रोजन विल मूव टुवर्ड्स द मैट्रिक्स एंड एट द मैट्रिक्स विल गेट द ATP, राइट. तो यहाँ पे जो ATP सिंथेसिस है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट, दैट इज डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन. विल गो विद ऑप्शन सी. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी. ओके, 136 फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग. कुछ कूलम दिया हुआ है, कूलम 1 एंड कूलम 2, एंड वी कैन सी इट इज रिगार्डिंग द डिस्कवरीज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले दिया गया है जैन इंजनहाउस. जैन इंजनहाउस ने क्या किया था? ही स्टडीड ए जैन इंजनहाउस ने क्या किया था? ही एक्सपेरिमेंटेड विथ ए aquatic plant. When he kept the aquatic plant in sunlight, he saw some bubble, okay, and what are those bubbles referred to? Release of oxygen. But when he shifted that aquatic plant in a dark room, there no oxygen liberation occurs. That means he proved that sunlight is essential for photosynthesis. Even what you observe that from the green parts only oxygen is liberating. That means photosynthesis occurs in green parts. तो क्या ऐसे कुछ डिस्कवरी हमारे कॉलम 2 में दिया हुआ है? Let's see. जैन इंजनहाउस, yes, look at this, showed that only the green part of the plants could release oxygen. So I will go I with B. That means 1 with B. Joseph Priestley Balzar experiment, okay, and it is related to the discovery of oxygen, right? So Joseph Priestley क्या कहा था? Plants restored to the air whatever breathing animals and burning candles remove, right? So when in the jar he kept a burning candle and a mouse, they died, but when he placed a mint plant in the jar, then he can see the mice was alive, the candle was still burning. What was the reason? He told that whatever damage happened due to the breathing of the mouse and burning of the candle, that damage of the air has been restored by the plant, right? And that led to the discovery of oxygen. So here number 2 will go with D. Engelmann
इंगेलमैन ने क्या किया था? इंगेलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम जो है डिस्कवर किया था, जहाँ पे उन्होंने क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा यूज किया था और एक प्रिज्म यूज किया था, जहाँ से उन्होंने लाइट को पास किया, लाइट स्पेक्ट्रम बन के क्लेडोफोरा पे गिरा। और क्लेडोफोरा में क्या देखते हैं कि क्लेडोफोरा जिस एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन में था, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने लगा क्लेडोफोरा के कौन से जगह पे, जहाँ पे एग्जैक्टली ब्लू लाइट और रेड लाइट था, राइट। और ये फाइंड आउट हुआ कि ब्लू लाइट और रेड लाइट आर द मोस्ट एसेंशियल लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूजिंग ए प्रिज्म, और क्या हिंट चाहिए हमें, स्प्लिट किया लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन ए सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, करेक्ट है। अच्छा, बाकी बचा जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक किस में देंगे? ओके, बाकी बचा जूलियस वॉन सैक। यहाँ पे हम कौन सा देंगे? यहाँ पे आ जाएंगे सी पे, प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट्स ग्रो। ओके, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, 3 से हमने क्या दिया था? ए, और 4 देंगे हम लोग सी, तो हमें मिल रहा है BDAC। कहाँ पे है? BDAC विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। तो जूलियस वॉन सैक जो थे, एक लाइन याद रखना कि जूलियस वॉन सैक ही इज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड, ओके, और रिलेट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द प्लांट ग्रोथ। उन्होंने कहा था हायर द ग्लूकोज प्रोडक्शन हायर इज द ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है तुमको क्यों हम लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं? तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए। Okay, statement 1, pollen grains in case of anemophily are covered by mucilaginous layer. Anemophily is wind pollination. Wind pollination में mucilage layer नहीं होता. Statement 1 is wrong. Statement 2, mucilaginous is a viscous sticky substance that protect the pollen from water. Yes. पोलन के ऊपर एक वाटर प्रूफ म्यूसिलेज का लेयर होता है जब वो वाटर पॉलिनेशन दैट इज हाइड्रोफिली करता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो 1 इज रॉन्ग। सो इफ द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। वेरी इजी क्वेश्चन आई गेस। 138, read the following statements carefully. Factors which govern and control developmental process are both intrinsic and extrinsic to the plant. It's correct. इंट्रिंसिक में क्या आता है? जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स एंड जीन। एक्सट्रिंसिक जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ओके, ग्रेविटी, ऑल दिस विल कम। सो दिस इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। ग्रोथ इज accompanied by metabolic process, both anabolic and catabolic. yes, anabolic जो होता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, सो ये करेक्ट हो गया। कैटाबोलिज्म जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है, एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। डू यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे ग्रोथ में क्या होगा? एक्सपेंस ऑफ एनर्जी है, इसमें एनाबोलिज्म है, इसमें कैटाबोलिज्म है, ये भी करेक्ट है। द सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन आर विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा। क्या मैचुरेशन रीजन में प्लाज्मोडेस्माटा अबंडेंट होता है? दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट ऑकर्स इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये चीज याद रखना है हमें, मतलब 3 ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। द ग्रोथ ऑफ ए गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स ग्रोथ रेट, राइट। ग्रोथ रेट एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस, जैसे कि पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। ओके, सो when we express growth rate with respect to initial parameter, that means we are comparing it, और ऐसे ग्रोथ को क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये करेक्ट है। इन जियोमेट्रिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिविजन, जियोमेट्रिक ग्रोथ में माइटोसिस होता है, यस, ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड while other differentiate and mature. No, it is wrong. Arithmetic growth में ऐसा होता है कि 1 cell divide into 2, 1 undergoes differentiation and 1 is for growth. Again this will to not divide and this cell will divide. Again 1 differentiates and 1 will not divide. So 1 will not divide and only 1 cell will divide. But in the geometric growth में क्या होता है? Both the daughter cells divide. इसीलिए geometric growth में growth बहुत fast होता है, right? So this statement is wrong. Which of the following statement is correct? एक बार देख लो क्या करेक्ट है। 1 है, 2 है और 4 है। 1, 2 and 4 go with the option number B. Okay. How is acetyl CoA produced from pyruvate? Acetyl coenzyme A. Okay, it is produced from pyruvic acid. Okay, we should have write pyruvic acid first.
तो pyruvic acid is 3 carbon, acetyl CoA is 2 carbon. Okay, and this process, you know what does it call? It is called link reaction. और लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन है ना. डीहाइड्रोजिनेशन है क्योंकि इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा सबस्ट्रेट से, और ये 2 हाइड्रोजन NAD+ को रिड्यूस करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? NADH+. ओके, सो इट इज ए ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन. और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, सो इट विल रिलीज 1 CO2, दैट मीन्स इट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑल्सो. इस रिएक्शन में मैग्नीशियम आयन यूज होता है, और कौन सा एंजाइम है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. Okay, so we can see a very easy question is given. Pollen grains lost their viability within 30 minutes of their release. तो हर एक प्लांट्स में, और बोल सकते हैं कि प्लांट फैमिली में पोलन वायबिलिटी वेरी करता है. यहाँ पे कौन सा पोलन ग्रेन है जिसका वायबिलिटी 30 मिनट्स होता है? तो रोज तो नहीं है, रोज बिलोंग टू रोजेसी है ना. और वीट जो है ये 30 मिनट होगा. सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस में 30 मिनट्स होता है. दैट मीन्स वी गॉट आवर आंसर एज वीट. पोटैटो कौन से फैमिली है? सोलेनेसी. इसमें भी नहीं, इसमें भी ज़्यादा होता है. और पी दैट इज फेबेसी और लेगुमिनस प्लांट. तो रोजेसी, सोलेनेसी और लेगुमिनस प्लांट में सेवरल मंथ्स तक वायबिलिटी रहता है पोलन का, जबकि सीरियल्स में, राइस, वीट में ओके वायबिलिटी within 30 minutes तक होता है. So we'll go with option number B. Okay, 141. Which of the following is incorrect about light reactions of photosynthesis? Incorrect ढूंढना है, ध्यान रखना. So NADPH is not produced in cyclic electron transport, है ना, ये करेक्ट है. साइक्लिक में ATP बनता है, NADPH नॉन साइक्लिक में बनता है. Light energy provides energy for the photolysis of water through excitation of the reaction center of PS2. Yes, PS2 के साथ photolysis attach है, right? और यहाँ पे PS2 जो है it gets excited by the light energy that help in photolysis. This is also correct. P680 and P700 are the reaction center of PS1 and PS2. No, PS1 is P700 and PS2 is P680. That means इनका जो maximum activation है it occurs at 700 nanometer and it occurs at 680 nanometer. So actually option C is wrong and we have to search the wrong, right? We'll go with the option C. Read the D options also. Reactions of the two photosystems are needed for the reduction of NADP+. NADP+ को reduce करने के लिए 2 photosystem चाहिए. हाँ, इसमें PS1 भी चाहिए, PS2 भी चाहिए. और PS1 और PS2 कौन से फोटोफॉस्फोराइलेशन में यूज होता है? दैट इज नॉन साइक्लिक. सो हियर वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी. ओके, 142. ऑक्सीजन इज डायरेक्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ऑक्सीजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, और इट विल टेक 2 प्रोटॉन एंड इट विल फॉर्म द मेटाबॉलिक वाटर. इसीलिए ETS में वाटर भी बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन मिल ही गया. फर्मेंटेशन क्योंकि एनारोबिक है, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा. ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक में कॉमन पाथवे है, तो उसमें भी ऑक्सीजन यूज नहीं हो सकता. इवन साइट्रिक एसिड साइकिल जो कि क्रेब्स साइकिल इज एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता. ठीक है, करेक्ट है. सो वी गो विद ऑप्शन नंबर ए. Okay, let's see 143 statement A. Auxin produced at growing apices. Growing apices that means apex. तो सोच लेते हैं यहाँ पे shoot apex that is shoot apical meristem जो है उसमें auxin होगा. Root apex that is root apical meristem. At that area auxin will be there. Okay, and it will promote the growth of apical bud. जिस चीज को हम क्या कहते हैं? Apical dominance. जो apical bud को प्रोमोट करता है और लेटरल बड को इनहिबिट करता है. ठीक है,
इसीलिए प्लांट क्या हो जाता है, प्लांट हो जाता है टॉल, प्लांट टॉल होगा और ब्रांचेस का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रिमूवल ऑफ शूट टिप, शूट टिप को रिमूव कर देना जिसको क्या कहते हैं, डीकैपिटेशन। वो कौन से प्लांट में कर रहे हैं हम लोग, टी प्लांट में। तो टी प्लांट में हमने शूट एपेक्स को कट कर दिया, डीकैपिटेशन कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि ऑक्सिन जो है, क्योंकि ऑक्सिन अभी क्या कहा हमने, ऑक्सिन एपेक्स में है और शूट एपेक्स कट करने से ऑक्सिन का लेवल कम हो जाएगा एंड इट विल अलाउ मोर ग्रोथ ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। ओके, तो क्या लिखा है देखो, इज डन टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। तो क्यों टी प्लांट में हम लोग डीकैपिटेशन करते हैं, ताकि ऑक्सिन जो एपेक्स में है उसका लेवल कम हो जाए एंड वी कैन ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। दैट मीन्स स्टेटमेंट बी का जो है आंसर, रीजन किस में दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है। सो आई विल गो विथ ए एंड बी आर करेक्ट, विथ ए बीइंग रीजन फॉर बी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, 144, which one occurs in both during cyclic and non-cyclic modes of photophosphorylation? Okay, involvement of both PS and PS2, it occurs only in non-cyclic, not in cyclic. So this will not be our answer. Formation of ATP, yes, it occurs in both cyclic and non-cyclic. So we can go with option B. But let's see the other option. Release of oxygen, no. Oxygen is only released again in non-cyclic only. Even the option D, formation of NADH, non-cyclic, not related with the cyclic. So for 144, we are going with the option number B. Okay, 145, which of the following statement is not correct? Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen or nectar robbers. Yes, very funny it is, right? They make a hole below the flower and enter the flower to collect the nectar and pollen and never enter through the natural opening. वो लोग कभी स्टिग्मा को टच ही नहीं करते and if they are not touching the stigma तो वहाँ पे pollination का कोई भी चांस नहीं होगा, right? तो ऑप्शन ए जो है ये तो करेक्ट हो गया। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। ठीक है, अच्छा लाइंस पढ़ते वक्त लग रहा है कि बहुत भारी भारी लाइन है क्योंकि एनसीईआरटी के लाइंस है ना, लेकिन मीनिंग जो है, मीनिंग एकदम इजी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस देख के स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट कीप पेशेंट एंड रीड द स्टेटमेंट नाइसली। यहाँ पे ऑप्शन बी में किसके बारे में बोला जा रहा है, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शंस। ओके, जो कि हम जानते हैं, इट्स करेक्ट। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स। यस, कुछ लिजर्ड का, यस, कुछ लिजर्ड्स का नाम दिया गया है जैसे कि गेको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, दे कैन एक्ट एज पॉलिनेटर। इन पोलन द वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल। ओके, ये तो रॉन्ग है, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर, राइट, and it has a irregular shaped nucleus and within the cytoplasm of this cell we can see the generative cell floating, है ना। और वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, द इनर वॉल इज इंटाइन एंड द आउटर वॉल इज एक्साइन। तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल स्मॉल, ये पार्ट रॉन्ग है, float in the cytoplasm of the generative cell. No, it should be reversed, right? Option D is our option here because we have to search non-correct. What is the product of aerobic respiration? इनमें से कौन सा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो ये नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल भी अल्कोहल फर्मेंटेशन में होगा, एनारोबिक, जैसे कि ईस्ट में होता है। पायरुविक एसिड, ये तो ग्लाइकोलाइसिस है जो कि कॉमन पाथवे है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो यहाँ पे बचता है ऑप्शन सी। आई विल गो विद ऑप्शन सी। बट हाउ वी नो कि मैलिक एसिड इज ए प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि मैलिक एसिड क्रेब साइकिल में बनता है ना, क्रेब साइकिल में बनता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। विल गोइंग विद 147, which one of the following may require a pollinator but is genetically similar to autogamy? Autogamy, that means self pollination. Self pollination occur within the same plant. So first of all, autogamy जैसा होने के लिए पॉलिनेशन होना चाहिए सेम प्लांट में। यहाँ पे सेम प्लांट में पॉलिनेशन होता है ऑटोगेमी, वो तो ऑटोगेमी दिया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए। क्या ऑटोगेमी में पॉलिनेटर चाहिए? नो। जेनोगेमी में पॉलिनेटर चाहिए, लेकिन वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन है, तो ये भी रॉन्ग है। क्लिस्टोगेमी,
क्लिस्टोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है और उसमें पॉलिनेटर नहीं चाहिए। तो बाकी बचा हमारे पास गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी ऑकर्स इन ए प्लांट, that is plant is bisexual but the plant has separate flower. One is female flower, okay, pistillate flower होगा, और क्या होगा, male flower, that is staminate flower. Okay, so pollination is occurring from the male flower to the female flower within the same plant. क्योंकि same plant है तो genetically self pollination है, but as they have different flowers, they need a pollinator similar to cross pollination. Okay, answer is gaetonogamy. Okay, 148, which one is correct sequence in glycolysis? Glycolysis have total 10 steps, I think you know, that is glucose, glucose 2, glucose 6 phosphate. तो यहाँ पे glucose 6 phosphate आ रहा है, yes. उसके बाद देखते हैं fructose 6 phosphate, fructose 1 6 bis phosphate. उसके बाद होता है cleavage. क्लीवेज में दो चीज बनता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम लिखते हैं 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड PGAL. तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं G6P 3 PGAL, यहाँ तक ठीक है. उसके बाद क्या आ रहा है देखते हैं, यहाँ पे आता है 1,3 bis phosphoglyceric acid, then we got 3 phosphoglyceric acid. Okay, so you can see 3 phosphoglyceric acid. उसके बाद 2 phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvic acid and pyruvic acid. So we are going with this option number B. 149, which stage of the Calvin cycle utilizes ATP? Calvin cycle, C3 cycle. Okay, if you see the reaction has 3 steps. First is carboxylation, RUBP plus CO2. केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 स्टेप्स लगते हैं, दैट मीन्स 6 टर्न ऑफ द C3 साइकिल. तो यहाँ पे होंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 phosphoglyceric acid. ओके, अप टू दिस इट इज कार्बोक्सिलेशन. यहाँ पे कोई भी ATP यूज नहीं होता. फिर आता है रिडक्शन स्टेप. ओके, तो 3 phosphoglyceric acid कन्वर्ट इनटू 1,3 bis phosphoglyceric acid. तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा और यहाँ पे यूज होगा 12 ATP. तो ATP यूज हुआ कौन से स्टेप में, ये कौन सा स्टेप है, रिडक्शन. तो 1,3 bis phosphो से फिर क्या बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 12 मॉलिक्यूल और यहाँ पे यूज होगा 12 NADPH. ओके, तो ये तो पूछा नहीं है हमसे, तो इसको छोड़ देते हैं. मतलब याद रखना है रिडक्शन स्टेप में ATP यूज होता है. उसके बाद ये जो 12G3P है, इनमें से 2G3P इट विल रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, माने दे विल रिमेन इन द रिडक्शन स्टेप. और बाकी क्या बचा हमारे पास, 10 molecules of G3P, it will go for regeneration and it will form 6 molecules of RUBP. Now to form 6 molecules of RUBP, again 6 ATP are used. और ये कौन सा स्टेप है, ये है रीजेनरेशन. और ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, रिडक्शन. ओके, तो रिडक्शन और रीजेनरेशन दोनों में ATP यूज होता है. I'll go with option D. Here comes the last question, 150. In post-fertilization changes, the central cell in the embryo sac after triple fusion become. Central cell में 2 polar nuclei होते हैं N. ओके, जब डबल फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, ये 2 पोलर न्यूक्लिय आपस में फ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल सेल में और क्या बन जाता है, एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फिर एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और ये बन जाता है एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, राइट. और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कौन से सेल में है, सेंट्रल सेल. and this central cell will develop into endosperm, right. तो यहाँ पे क्या बनेगा आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. Seed, what forms the seed, ovule. Ovule develop into seed. What forms the embryo, zygote. Okay, and zygote is the result of fertilization, syngamy between male gamete and female gametes. Okay, so I hope your exam went well and best of luck for the next.